Okay, let's start. This call is now being recorded. First, let us recapitulate what we have covered in the previous lectures. इन जल्दी से हम 5 मिनट के अंदर सारा का सारा रिकेपिचुलेट कर देंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे की चीजें। तो यहाँ पे कुछ डेटा है मुझे यहाँ पे आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जिनको फॉर द PN junction basics, for the P type semiconductor and type semiconductors. So in the previous classes we have discussed about the semiconductor physics. In the semiconductor physics we discussed about the conduction of current inside the conductor, the temperature dependence of the resistivity of the conductor, and then we discussed about the semiconductor and how the current flows inside a intrinsic semiconductor, and then we discussed about the process of doping process in which we add some particular kind of impurity in order to improve the conductivity, and we have seen by the doping process we can improve the conductivity of the material, we can improve the conductivity of the semiconductor material, and this is the reason, and that we are using semiconductors extensively. The control on the conductivity, this kind of thing cannot be achieved for the conductors. For the conductors we cannot achieve this kind of thing, but and for the semiconductors we can achieve the control of conductivity by some material processing, and that process is called doping. And as I have already discussed with you that this is a part of fabrication technology, and this is a separate branch for the electronics. If anyone is interested in those things, then he should go for bachelor's and then the master's in that particular subject. So it is a very vast field, fabrication technology, and already I have discussed major companies which are working on this. In the topmost company that is known as Intel, Texas Instrument, ST Microelectronics. There are several companies which are working on this field, on the fabrication technology. So, and then we discuss about the P type and N type. How can we convert our intrinsic semiconductor into a extrinsic semiconductor by some doping process? And in the previous lectures, we discussed how can we create some new energy levels inside the band theory. Even we studied the band theory very extensively, and we try to understand how bands are formed and how this new energy level is formed. So this we have already discussed in the previous lecture, P type, N type. And I think in the last lecture I have discussed the current conduction in the P type and N type. Okay. And the DHA question, the DHA, yes, first let us discuss the DHA question. The DHA question was related to the P type and N type. बहुत सिंपल है, and I think बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है. तो बेसिकली क्या होता है उसमें कि P टाइप हो या N टाइप हो, P टाइप हो या N टाइप, कोई भी मटेरियल हो. चलिए हम N टाइप लेके चलते हैं पहले. तो N टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द करंट किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, बहुत ज्यादा होते हैं. अब वी नो दैट कि जब आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, यानी जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तब हमें पता है कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बढ़ती है. इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, तब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बढ़ती है. और आपका जब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो अगर हम बैंड डायग्राम को देखें, हियर आई एम डिस्कसिंग द डीएचए क्वेश्चन, वन ऑफ द डीएचए क्वेश्चन. तो बेसिकली अगर ये एन टाइप मटेरियल है, आई विल डिस्कस फॉर द एन टाइप, एंड फॉर द पी टाइप यू कैन अंडरस्टूड बाय योरसेल्फ. बहुत सिंपल है. जो एन टाइप का एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल सिमिलर पी टाइप का एक्सप्लेनेशन है. तो बस एन टाइप के लिए डिस्कस कर लेते हैं. अभी कुछ लोग आ रहे हैं, लेट मी एडमिट देम. चलिए, तो यहाँ पे आपको बस ये समझना है इस डीएचए इसमें जो क्वेश्चन डीएचए में पूछा गया था, यहाँ पे हमने एक एनर्जी लेवल क्रिएट कर देते हैं.
तो अब these electrons are already at room temperature. You can say these all electrons are already inside the conduction band. ठीक है. अब और there are some holes and electrons which are generated intrinsically. तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा. देखिए मैं यहाँ ऊपर नीचे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी आए अंदर क्या होता है मटेरियल के. ऑलरेडी डिस्कस कि दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है. हम सिर्फ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके के डायग्राम्स बनाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो चीज कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द. बट एग्जैक्टली कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है वी डोंट नो दिस. ओके. सो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने एग्जांपल के तौर पे लिए. अब जब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इंट्रिंसिक अगर आपका यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यानी कि ये बढ़ जाएंगे, थोड़े से नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ जाएंगे और आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे. बट ऑलरेडी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम यहाँ देख चुके हैं मच मच ग्रेटर देन NH. अगर NH में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट होगा, मान लीजिए बढ़ जाता है NH में, डेल्टा NH हो जाता है, तो वो इनसिग्निफिकेंट है. Insignificant because in the n-type semiconductor we have already discussed that the current in n-type semiconductor is due to electrons and holes. Is due to electrons and holes. ये n-type semi. अब इसमें holes की जो current है वो बहुत कम होती है, almost negligible. You can see here, because of this. Because of this, as we know that we have already increased the number of electrons way too much high than the holes. अभी भी और लोग आ रहे हैं, काफी टाइम लगा देते हैं लोग आने में. चलिए, तो ये Ne यहाँ पे बहुत ज्यादा है. Ne बहुत ज्यादा है किससे? NH से. तो ये जो करंट है वो इनसिग्निफिकेंट और इंक्रीमेंट इलेक्ट्रॉन्स में भी होगा थोड़ा बहुत, पर वो जो इंक्रीमेंट है दैट इज इनसिग्निफिकेंट. यानी टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इतना फर्क आएगा दैट कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज कंडक्टिविटी तो हमने पहले ही इंप्रूव कर दी है उसकी. किसकी किसकी? आपकी एन टाइप की कंडक्टिविटी हमने कैसे इंप्रूव कर दी है पहले ही? बाय यूजिंग the doping process. By this doping process we have created one more energy level by properly diffusing the pentavalent impurity inside an intrinsic semiconductor. We have created one more energy level and that energy level is supplying a large number of electrons. So any electrons which are generating due to some elevated temperature are insignificant as any electrons or any holes, because definitely whenever there is a generation there will be electron hole pair generation, intrinsic generation. So so this term intrinsic must be very clear to you. यहाँ पे इसलिए मैं अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये प्रोसेस हमेशा होता रहता है मटेरियल के अंदर. इसका भी हम आगे भी जब पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तब भी ये हो रहा होगा. ठीक है. ये प्रोसेस हमेशा होता रहता है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम में रहते हैं टेम्परेचर. ये आपका होता रहता है. ठीक है. बट somehow we have created this energy level, that is why the temperature change will be insignificant to the conductivity of the n type और p type सेमीकंडक्टर. p type के लिए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा. अब आप खुद से समझ सकते हैं सारा एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे आपके होल्स हो जाएंगे क्रिएट. होल्स का जो लेवल हमने क्रिएट किया, यहाँ पे जो हमने नया एक लेवल क्रिएट किया है, नई क्वांटम स्टेट लेवल, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन टू द होल. तो बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन होता है. बताइए अगर होल्स का एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर्ड है या आगे बढ़े? किसी स्टूडेंट को अगर फील हो रहा हो कि होल्स एक्सप्लेनेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, देन आई कैन गिव द होल्स एक्सप्लेनेशन. सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. सब चीज बदल जाएंगी, सिर्फ ई की जगह एच आ जाएगा. ये एच यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा और बाकी सब चीजें सेम रहेंगी.
और ये एनर्जी लेवल चेंज हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने ये आपका डोनर एनर्जी लेवल है, ये आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, तो उस एनर्जी डोनर से एक्सेप्टर, एक्सेप्टर से डोनर हो जाएगा। ये क्लियर है? आगे बढ़े हम। ये आपके डीएचए का सवाल था जो कि मैंने आपको दिया है। अच्छा, सेंटर्स वाले बच्चों को डीएचए मिल रहे हैं? कोई भी अगर आईसीटी सेंटर का बच्चा हो उसको 3 डीएचए मिल चुके हैं उन लोगों को? यस सर। आपको 3 डीएचए मिल चुके हैं ना? और एक Yes, जमशेदपुर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सेंटर के बच्चे थे वो कुछ कह रहे थे कि हमारे, मैंने सभी सेंटर्स को मैंने चेक किया अपनी मेल आईडी में, जहाँ पे मेरे सभी सेंटर्स को प्रॉपरली तीनों डीएचए मेल किए गए हैं, भले वो एक दिन डिले से करे गए हो, पर सभी सेंटर्स को मेल किए गए हैं। आपके जो रेस्पेक्टिव सेंटर कोऑर्डिनेटर है आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बोलिए कि मेरी आईडी से मेल आए होंगे, और उन पर क्लियरली मेंशन है सब्जेक्ट में कि डीएचए 1, डीएचए 2, डीएचए 3 फॉर एनालॉग एंड डिजिटल एंड टीवी इंजीनियरिंग। ये 3rd ईयर का सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ, और ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट्स के डीएचए पहुंच चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक देखिए अब आपको क्लियर हो रहा होगा पिक्चर कि एन टाइप पी टाइप क्या है। एक और चीज, एक और अनाउंसमेंट जो कि आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंटर्स वाले बच्चों के लिए, हालांकि मैं अभी ये ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो वो अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ और मैं यहाँ कुछ डेटा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो डेटा कॉपी करना है मुझे, जल्दी से वो डेटा लिख देता हूँ, आप भी इसको कॉपी करिए। चलिए आपके पास तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा एनीवे, पर फिर भी यहाँ पे डिस्कस करना है थोड़ा सा। तो सेंटर वाले बच्चों के लिए क्या अनाउंसमेंट है कि वो सभी लोग अपना एक मैं वो क्रिएट करने वाला हूँ, गूगल क्लासरूम। ठीक है, गूगल क्लासरूम क्रिएट करूंगा फॉर द सेंटर्स, बिकॉज आपका सीए होगा अगले वीक, आप लोगों का सीए होगा अगले वीक, तो उसको आपको समझने के लिए, यानी कि उस सीए को अटेम्प्ट करने के लिए सेंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक क्लासरूम क्रिएट किया जाएगा अलग से, जिसमें कि टेक्निकल कॉलेज का कोई स्टूडेंट नहीं होगा। और टेक्निकल कॉलेज में अलग अलग डीएच मैंने 2-3 तरीके के डीएच तैयार करे हैं, जिससे कि आपको समस्या ना हो। इलेक्ट्रिकल वालों का अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का अलग होगा, और ये सेंटर वालों का अलग होगा। ठीक है, अलग अलग टाइम पे करेंगे। एक सीए, सॉरी डीएच नहीं, सीए, आई एम टॉकिंग अबाउट सीए। एक मिनट में डेटा लिख दूं बस। इंट्रिंसिक लास्ट डेटा है इंट्रिंसिक रजिस्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंट्रिंसिक रजिस्टिविटी, होल मोबिलिटी रहेगी शायद। चलिए यहाँ लिख, यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और बाकी भी यूनिट्स हैं, ये मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट सेकेंड सॉरी, और ये भी मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, और इंट्रिंसिक कैरियर पर सेंटीमीटर नहीं, पर मीटर क्यूब है, ये पर मीटर क्यूब है यहाँ पे जो डेटा आपको दिया जा रहा है। और ये है आपका डेंसिटी, डेंसिटी नहीं है आपको लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेंसिटी आपके न्यूमेरिकल्स में नहीं आएगी, तो आपको रजिस्टिविटी ओम मीटर। हाँ जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अभी जो मैं बोल रहा था आपसे कि सेंटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक क्लासरूम क्रिएट किया जाएगा गूगल क्लासरूम पे अलग से, और उसके मैं आपको सेंटर वाले स्टूडेंट सभी सेंटर्स पे सेपरेटली मैं उसकी आपका जो कोड है वो भेज दूंगा, उसको वो ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट वीक में एक आपका सीए आएगा उस पर, ठीक है, तो वो आपको अटेम्प्ट करके वहीं पे सबमिट करना होगा। ठीक है, तो वो आपको वहां से सबमिट करना होगा सीए को। तो इसके लिए, जिससे कि सीए, क्योंकि मुझे ही ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे सेंटर्स के लिए भी, तो सेंटर्स वाले अलग से देंगे,
और मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी सेंटर वाला स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी टेक्निकल कॉलेज का इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वीआईटी में अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हो तो प्लीज वहां से आके अपने आप को उस वाले ग्रुप में एनरोल करें। और सेंटर वाले स्टूडेंट जो भी बीए करेंगे सबसे ऊपर अपने सेंटर का नाम और रोल नंबर और नाम, ये 3 चीज उनको मैंडेटरी है, अदरवाइज सब कुछ मिक्स हो जाएगा डेटा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये नेक्स्ट वीक की बात है, तो नेक्स्ट वीक करेंगे बात। चलिए जल्दी से डेटा लिख देते हैं। 1.1 2.67 इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 0.135 and 0.39 whole mobility 0.048 0.19 and concentration per 1.5 into 10 raised to the power 16 and the last point is resistivity. So this is some data pertaining to silicon and germanium, and let us try to understand this data. So in this table, first in this column, the first is the energy. This is the energy gap. Actually, this is the energy gap. Energy gap in electron volt. What is energy gap? Energy gap is the energy difference between conduction band and valence band. So this energy gap is in electron volt. Electron volt is a unit of energy. This we have already discussed in the previous lectures. So energy gap is 1.12 electron volt for the silicon, and for the germanium is 0.67. Okay. ये आपको याद भी रखना है, और most of the time it will be given in the data, but sometimes it is required to remember because these are the two semiconductors which are very important to us, silicon and germanium. Okay, and electron mobility. Now more things will be clear to you practically, as we have discussed in the previous lectures that the electron mobility is higher than the hole mobility, and here you can see the practical values of electron mobility and hole mobility. This is the 0.135 for the silicon, and it is also different for the different materials. Okay, in different materials, because of internal structure, we know that V equal to Vd equal to minus mu E, so the mobility is different. Okay, for the different materials. Electron mobility 0.135 for this material, 0.39. But this all is at the temperature 300 Kelvin. One more thing, this data is at the standard temperature 300 Kelvin. Okay, so 0.135, 0.2, because for most of the critical values, the temperature is 27 degrees Celsius. Room temperature 24, 27. That's why we use this data as a standard data. 0.135, 0.139 whole mobility, 0.048 for the silicon, and 0.19 for the germanium. And intrinsic carrier density means per meter cube, number of atoms per meter cube, 1.5 into 10 raised to the power 16 per meter cube. And in the numerical it was per centimeter cube. So there's a difference. So you should not get confused about this thing. So this is per meter cube 1.5 into 10 raised to the power 16, and this is 2.4 10 raised to the power 19. You can see the atoms are more in the germanium. And this is the intrinsic resistivity in ohm meter is 2300 ohm meter, and this is 0.46. So the it has the less resistivity. Germanium has a less resistivity. But there are some certain reasons we prefer silicon, and this we will discuss with you within the due course of time. And with the subsequent lectures, you will try to understand when we will discuss the transistor. Then why silicon? The temperature stability is for silicon. So we will discuss this thing in the subsequent lectures. So now you can you have a table by which you can compare the important characteristics of the various semiconductors. Not various, just two semiconductors which are very much important to us: silicon and germanium. Okay.
Now we will move ahead and we will try to understand some new concepts regarding p type and n type, and because we need to create the p type structure and n type. Now I will create a p type, n type, and now we will try to understand some more terms like acceptor ion. What is acceptor ion? What is donor ion? And some student in the last class at the last point of previous class discussed about some charge of the p type and n type. So we will discuss now. Okay. So I think this is clear, and now I'm rubbing this. So this was about the characteristics, the characteristics of the semiconductor physics, characteristics of the silicon and germanium. There are many more characteristics, but which are related to us, which are in our syllabus. I have discussed. अभी भी लोग आ रहे हैं. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज क्या है हमारे लिए. देखिए जैसे ही क्लास खत्म होने में 10 मिनट हो, आप मुझे एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा बीच में कि सर 10 मिनट रह गए हैं. ठीक है. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपसे पी टाइप और एन टाइप. पी टाइप मटेरियल में बेसिकली पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का कंसेप्ट समझते हैं हम. सबसे पहले अगर मेरे पास एक पी टाइप मटेरियल है, बिकॉज अभी इनको हम यूज करने वाले हैं दोनों को एक साथ, तो पिक्चर हमें क्लियर होना चाहिए. तो बेसिकली एक चीज जो हमको समझनी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि पी टाइप कब कैसे बनता है कि जब आपका फास्फोरस जो है हमारा सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग करता है. इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही होती है, 4 बॉन्ड बने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपका डिफरेंट होता है, इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा बिकॉज ये इसका जो सिस्टम है वो डिफरेंट है. इसका एनर्जी लेवल क्यों डिफरेंट होगा? इसका सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट है इससे हमारे और सिस्टम से, बिकॉज और जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करके बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है. तो इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से, जैसा कि यहाँ पे मैं एक और पिक्चर क्रिएट कर देता हूँ वेन डायग्राम वाला भी, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ये जो यहाँ पे आपका लेवल है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी चले जाते हैं. अब एक चीज आपको ये समझनी है, एवरीथिंग इज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो ये जो भी कुछ है ये सब कुछ एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ही है. ठीक है. ये जो भी कुछ है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ही हो रहा है. ठीक है. ये तो हमने बैंड थ्योरी पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को होल्स को समझने के लिए किस तरीके से कंडक्शन होता है, ये हमने यहाँ पे बैंड थ्योरी को समझा था. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो डिफाइन किया जाता है कि बाउंड फिक्स्ड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड द डोनर आयन. अब यहाँ पे आयन कैसे बन रहा है? बिकॉज वी नो कि ये सारे इलेक्ट्रॉन एट सम एलिवेटेड टेम्परेचर, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट, ये तो बॉन्ड बने रहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने पेरेंट एटम को छोड़ देगा. अब ये अगर अपने पेरेंट एटम को छोड़ देगा तो इसके पेरेंट एटम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 4, जबकि जनरली 5 होते हैं पेंटावेलेंट में. तो अब ये जो है यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन रह जाएगा जब इसका इलेक्ट्रॉन इसको छोड़. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम देखें पिक्चर, तो बेसिकली वी हैव पॉजिटिव आयंस, ये पिक्चर बिल्कुल जस्ट हमारे पीएन जंक्शन से पहले की है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि ये डायग्राम कहां से आया. ये तो पॉजिटिव आयंस हो गए, और इसमें और क्या एसोसिएटेड है साथ में? ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सब मटेरियल के अंदर ही है, सब कोई चीज मटेरियल के बाहर तो निकल के गई नहीं है. अभी ऐसा तो कुछ किया नहीं हमने मटेरियल के बाहर कुछ जा सके बाउंड्री से बाहर. वो तो यही है कि जब आप हीट करोगे तो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. वाटर के साथ अलग केस होता है, तो हम उसको हीट करते हैं
तो जो वाटर के जो पार्टिकल है वेपर फॉर्म में उड़ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ फिनोमिना तो हो नहीं रही, सब कुछ मटेरियल के अंदर ही है। और इनसे एसोसिएटेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पॉजिटिव आयंस हैं और हर एक पॉजिटिव आयन से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा, और इसके अलावा इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे कुछ, पर वो बहुत कम होंगे। कुछ इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है इंट्रिंसिक। और जितने इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से आपके होल्स भी होंगे, बिकॉज इंट्रिंसिकली यहाँ पे आपने देखा था ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच ही गए थे, इसके अलावा होल्स थे और कुछ इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन थे। ये इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए और यहाँ पे कुछ आपके होंगे होल्स। तो ये आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए। दिस इज द मटेरियल स्ट्रक्चर, दिस इज द मटेरियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एन टाइप। एन टाइप मटेरियल के अंदर क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, एक तो पॉजिटिव आयन है, पहली चीज आप क्लियर करिए। एक तो है आपका पॉजिटिव आयन, ठीक। सबसे पहले तो आपको एक कि पॉजिटिव आयन किसकी कौन सा है, ये फास्फोरस आयन, ये वो फास्फोरस, यहाँ पे ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट विद द पीएम, बिकॉज संडे को आपकी 2 घंटे की क्लास होगी अगेन, तो संडे को हम फिर से सब कुछ खत्म कर देंगे, फर्स्ट यूनिट विल बी फिनिश। तो संडे को जब फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाएगी उसके बाद फिर आपका सीए होगा ये भी, ठीक है। चलिए, तो अब आप ये देखिए यहाँ पे कि ये आपके यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पिक्चर में आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एसोसिएटेड है फास्फोरस एटम से। और दीज आर द मटेरियल। लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, बट आई थिंक इट इज विजिबल। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा कम विजिबल है, बट आ जाएगी थोड़ी देर में लाइट। चलिए, अब यहाँ पे ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं, ये कौन सा आयन है, डोनर आयन, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल्स हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, सीधी सी बात है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स क्या होंगे माइनॉरिटी कैरियर। सिमिलरली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पी टाइप। पी टाइप मटेरियल के अंदर अगर हम बात करें तो पी टाइप मटेरियल के अंदर होंगे आपके एक्सेप्टर आयंस। अभी क्यों होंगे डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव कैसे आया अभी बताता हूँ, जैसे हमने इसको डिस्कस किया। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये इसमें 5-5 के बन गए, बड़ा मटेरियल सेम ही, ठीक है। यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब आपका आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डिफ्यूज किया है, when we diffuse the trivalent impurity inside a intrinsic semiconductor, then what really happens that 3 bonds are created, okay, and one quantum state is available, and this quantum state is at a different energy level than this, as we have already discussed the energy level of this quantum, when silicon and boron silicon, these will have a different quantum states, okay, because the parent atom is different. Parent atom is boron here, or some trivalent impurity is there, okay. So now what is this happening, some electrons from the neighborhood will come and fill this quantum state. As we know this, at some elevated temperature this phenomena is very probable, and some electron will come and fill this state. And now what will happen, now this boron atom will have one more free electron, one more electron in its outside orbit. Why? Because it has already 3 electrons here and it was a neutral atom. But when one more electron is here, then
what is happening? It is creating it negative ion. So this is the fixed positive. This is fixed. It cannot move. Again, you need to understand this phosphorus is fixed and this boron is fixed. So we are calling this fixed donor ion and fixed acceptor ion. This is the acceptor ion here. Fixed acceptor ion. Okay. Now, you can see the holes are created. There are large number of holes. Okay, and there are small number of electrons due to intrinsic, and those electrons are called intrinsic electrons or the minority carriers. Small number of electrons. And similarly, there will be some holes due to intrinsic carriers. So this is the structure of p-type and n-type material. So p-type and n-type. So bound fixed negative ions in the are called the acceptor ions. Bound fixed negative ions are called the acceptor ions, and bound fixed positive ions are called the donor ions. So what you need to understand, this is the terminology related to p-type and n-type. Here we have bound fixed donor ion, and here we have bound fixed acceptor ions. Okay. Now we will understand the charge neutrality. So first, this thing should be very clear that because we have discussed in the previous classes. Now we are just making the final picture of n-type and p-type, how these materials are formed, and soon we will see. And when we will make a p-n junction, then what will happen? This we will discuss in the subsequent classes. But first, you need to understand this picture. Okay. So next thing is this, the charge neutrality. Charge neutrality of the n-type and p-type. Okay. So next is the charge neutrality. अब चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होती है कि बेसिकली हम ये कहते हैं कि एन टाइप और पी टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और इसमें होल ज्यादा हैं. तो जनरली लोगों के दिमाग में ये आता है, या फिर समहाउ के जनरल इंडिकेशन कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर समहाउ ज्यादा है तो ऐसा तो नहीं कि ये नेगेटिव मटेरियल हो, बिकॉज किसी भी चीज में एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने नेचुरली होने चाहिए उससे ज्यादा, देन डेफिनेटली हमने देखा कि इस आयन पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई तो ये आपका क्या बन गया? पॉजिटिव आयन. तो इसी तरीके से अगर इस मटेरियल को एज ए होल देखें तो इट सीम्स लाइक दिस, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर then this material might be positive or negative. So actually this is not correct. The thing is this, these materials are electrically neutral. These both materials are electrically neutral. Why? I think you can understand. बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी concept नहीं है. The thing is this कि एक equation भी है which is called the charge neutrality equation, which is called the charge neutrality equation. And P plus N A ये होती है आपकी चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, जो कि किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए ट्रू है. हालांकि मैं आपको इक्वेशन नहीं बताना चाहता था, बट समहाउ ये दो ही इक्वेशन मैंने आपको बताई है पूरे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में. दो ही इक्वेशंस मैंने आपको बताई है, एक तो चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन. सो बाय दिस इक्वेशन यू कैन एक्सप्लेन द चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ द एन टाइप एंड पी टाइप. अभी हम डिस्कस करते हैं इसको एक मिनट में. और दूसरी इक्वेशन जो मैंने आपसे डिस्कस करी है, एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर.
ओके, ये हमने पहले डिस्कस किया था इंट्रिंसिक के लिए, बिकॉज ni इक्वल टू n इक्वल टू p। तो ये दो ही इक्वेशन अभी तक हमने यूज करी है, और इसके अलावा हमें किसी भी इक्वेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट from the qualitative point of view, not quantitative point of view. And the thing is this, we do not require the analysis by the equations. We are learning this thing with the help of qualitative analysis. Okay, so what you need to understand, np equal to ni square. So this is the this is also called the mass action law. Actually, if someone is reading from some book, so confusion now इसलिए मैं बता दूं, this is also called the mass action law. Okay, so np equal to ni square. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ये चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन क्या है। ये किसी भी जनरल सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड है। अब अगर n टाइप होगा, अब आप ये देखिए, पहली चीज तो मैं आपको क्वालिटेटिवली समझा देता हूँ कि ये मटेरियल न्यूट्रल कैसे है। अगर किसी को डाउट है तो अभी भी, अगर वैसे तो सिंपली आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो मटेरियल है आपका, हर एक जो फास्फोरस एटम है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जब निकल जाए तो ये सारी चीजें, यानी कि इनिशियली जब अगर हम देखें इंट्रिंसिक मटेरियल को, इंट्रिंसिक सिलिकॉन को देखें तो वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिकॉज इन द इंट्रिंसिक सिलिकॉन जब हमने डोपिंग नहीं करी तब क्या हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल जनरेट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, बिकॉज किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, रिकॉम्बिनेशन भी होता रहेगा। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, और रिकॉम्बिनेशन से आपको कोई मतलब भी नहीं है। बेसिकली हमको बस इतना समझना है कि जनरेशन हो रहा है, जितने नंबर, यानी कि एक मटेरियल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया, यानी कि इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया। सिमिलरली फॉर दिस सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन से होल्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड द मटेरियल, everything is inside the material. This is positive, this is negative. Okay, so this, अगर ये इलेक्ट्रॉन वापसी से इसमें चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूट्रलिटी फिर से इसमें क्या कहते हैं ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, तो यानी कि अगर हम इस सिस्टम को देखें तो इसकी न्यूट्रलिटी क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सिमिलरली ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जितने भी, और ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनसे एसोसिएटेड होल्स हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इस सिस्टम के अंदर है, बाउंड है इस एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेम एक्सप्लेनेशन इज फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में भी ये जो आपका होल क्रिएटेड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है, तो ये भी आपका सिस्टम से बाउंड है। ये सारे के सारे इसी सिस्टम के अंदर है। All these things are inside the p-type semiconductor. There is no exchange of the electrons or the holes with the outside system. So nothing is going out. सर हाँ जी बताइए। सर ये सब न्यूट्रल कैसे हो सकता है एंटायर? सर इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना सर? कहाँ से ज्यादा है मुझे यही तो समझिए। आप ये देखिएगा कहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक क्या, ऐसे तो यहाँ पे आप देखिए जब आपने एक मटेरियल के अंदर, देखिए सिलिकॉन था हमारे पास, इसको और अच्छे से आपको आसान से समझाते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक मटेरियल था सिलिकॉन मटेरियल, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल ही है, क्योंकि इसमें आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। मटेरियल तो न्यूट्रल है आपका। आपने देखिए आप मटेरियल को लेकर रब तो नहीं कर रहे हैं या कुछ भी इस तरीके का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो, सीधी सी बात है, ऐसा कोई प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर फॉर्मिंग द सेमी। अब इसी मटेरियल में एक और न्यूट्रल एटम, यानी कि क्या, बोरॉन या फिर मान लीजिए फॉस्फोरस को हमने इसके अंदर डाल दिया, फॉस्फोरस को। अब जब फॉस्फोरस को इसके अंदर डाला तो फॉस्फोरस के अंदर तो 5 इलेक्ट्रॉन यानी 15 इलेक्ट्रॉन थे और 15 ही प्रोटॉन थे। 15 प्रोटॉन थे, 15 इलेक्ट्रॉन थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे, 14 प्रोटॉन थे। अब ये मुझे बताओ
एक न्यूट्रल मटेरियल के अंदर, और हमने बिल्कुल सरफेस लेवल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यूट्रल मटेरियल के अंदर एक दूसरा न्यूट्रल मटेरियल डाल देंगे तो उसके इंटरनली ये जब चेंजेस आ रहे हैं, मटेरियल की बाउंड्री के अंदर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री कर लिए, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड सम डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ द डोनर इलेक्ट्रॉन्स, because we have created some different energy level, and everything which is happening here, what we have learned in the previous classes, is inside the material, not outside the material के बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन पॉपअप नहीं किया, या बाहर से हमने इलेक्ट्रॉन नहीं डाले हैं, हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं डाले हैं, हमने बाहर से मटेरियल के अंदर एक मटेरियल डिफ्यूज किया है, एंड बोथ मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बोथ मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और एक न्यूट्रल एटम के अंदर एक न्यूट्रल एटम डालेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी न्यूट्रल ही होगा, बिकॉज मास का कंजर्वेशन लॉ आपने सुना होगा, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो जब तक आप बाहर से इसमें चार्ज नहीं डालोगे तब तक एक्स्ट्रा चार्ज कहां से आएगा। तो सिमिलरली ये इनसाइड फिनोमिना जो इसके अंदर हो रही है, बिकॉज ऑफ बैंड थ्योरी वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना, so because of this phenomena this confusion is created that this must be negatively charged because electrons are, but what you need to understand that for every electron there is a positive ion, and अगर आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ी सी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है, ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों हमेशा, अगर एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन अगर हम प्रॉक्सिमिटी में है दोनों और किसी भी टाइम न्यूट्रल हो सकते हैं, देन दिस सिस्टम इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो दिस इज, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है सर जो बचता है? कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? सर ये डायग्राम समझ, देखो ये डायग्राम में आपको ये समझना है कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस फास्फोरस एटम से अलग हुआ, और फास्फोरस को पॉजिटिव बना गया। अब एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बन गया, अब है तो सारा अंदर ही, चला कहाँ जाता है? आपने पिछली क्लासेस लगाई थी कि कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताओ, आप पहले ये बताओ, आप ऐसे सवाल कर रहे हो एकदम से कि सब चीज खत्म होने के बाद पूछे चला कहाँ जाता है, जाता कहीं नहीं है, मटेरियल के अंदर ही रहता है कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड जानते हो क्या होता है? हाँ सर जानता हूँ। तो बताइए क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सर कंडक्शन होता है सर उसमें। हाँ तो आप ये बताओ मुझे कि एन टाइप मटेरियल में एनर्जी लेवल जो होता है वो कहाँ पे होता है? कहाँ पे? यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों एनर्जी लेवल। तो ऑब्वियस सी बात है, जरा सी एनर्जी मिलेगी तो ये वापस चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो वहां चला जाता है हर एक एटम का, और ऐसे न जाने कितने एटम हम डिफ्यूज करते हैं, हमने डिस्कस किया ना, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये होती है आपकी चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। तो पहले आप ये क्लियर करिए क्वालिटेटिवली, इक्वेशन तो आपके लिए बहुत थोड़ी ऊपर की चीज है, इक्वेशन को छोड़िए, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस, मैं से बता, अभी इक्वेशन से एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों तरीके हैं, मैथमेटिक्स भी है और क्वालिटेटिवली समझ सकते हैं। सिंपली दिस सिस्टम, इनसाइड दिस सिस्टम, अगर हम देखें एन टाइप मटेरियल इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी, होल्स भी हैं माइनॉरिटी में, और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि इंट्रिंसिकली जनरेट हो रहे हैं, और क्या है साथ में, और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमने डोपिंग की वजह से जनरेट हुए हैं, जो कि पहले इंट्रिंसिक में नहीं थे, एक्सट्रिंसिक मटेरियल में है। यानी जब मटेरियल हमने एन टाइप फॉर्म कर लिया समहाउ, यानी कि हमारे पास पहले क्या था, खाली सेमीकंडक्टर, किसी काम का नहीं है, उसको काम का बनाया हमने। कैसे? हमने उसको इंजीनियर्ड किया विद द हेल्प ऑफ मटेरियल प्रोसेसिंग, एंड देन वी हैव क्रिएटेड वन n type of material, and this material is electrically neutral. Why? Because there is no exchange of this from the outside of system. outside के साथ कोई exchange नहीं हो रहा, इसकी जो कुछ भी हो रहा है इसकी बाउंड्री के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन और होल्स जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और होल्स तो वैसे भी बाहर हो ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स अगर जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक कोई भी फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए, अब भी कोई डाउट है आपको? एनीवन?
बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। दैट्स व्हाई मैंने इस पे पूरा एम्फेसिस किया, और आज का लेक्चर तो लगता है इसी पे खत्म हो गया पूरा। तो बताइए, अगर कोई डाउट है तो आप अगेन पूछ सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग, सेम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज फॉर द पी टाइप मटेरियल। एवरीथिंग इज इनसाइड द मटेरियल। आपने एक सिलिकॉन मटेरियल था जो कि न्यूट्रल था, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन है। सिमिलरली आपने क्या फिर आपने क्या किया, इसमें फास्फोरस डाला जिसके अंदर 15 प्रोटॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ये बताइए इसमें चार्ज कहां से आ जाएगा कुछ भी, बिकॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डिफरेंट एलिमेंट को डिफ्यूज किया गया। दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब नहीं होगा, जब भाई कहीं पे कोई फास्फोरस एटम आप ऐसा डाल दो जिसमें 15 की जगह एक 14 इलेक्ट्रॉन हो, तब ये फास्फोरस आयन है, तब ये आयन अगर इसमें डाल रहे हो। अब आपने एक कम डाला है, लेकिन हम तो इसमें फास्फोरस पूरा डाल रहे हैं, तो यहाँ पे इनसाइड द मटेरियल दिस फिनोमेना इज हैपन, which we have explained with the help of band theory, inside the material after the material processing, and the material is electrically neutral. N type and P type both are electrically neutral, and again you can understand with the help of equation. इस इक्वेशन को समझते हैं। दिस इज द चार्ज न्यूट्रल, दिस इक्वेशन, अभी आपने दो इक्वेशन सीखी है और दो ही इक्वेशन आपके लिए जरूरी है। कितना टाइम रह गया आपके अगली क्लास में? 10 मिनट ही रह गए सर। 10 मिनट सर। 10 मिनट ही रह गए। चलिए ठीक है ओके, 10 मिनट में तो आपका सारा कंप्लीट कर देंगे। 10 मिनट में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बस हमें अभी एक नई कंसेप्ट समझिए, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट, दो तरीके के करंट होते हैं, वो और सीख लें। देखिए, मैं इसलिए आपको ये सारी कंसेप्ट पहले के लिए, क्योंकि जिस समय हम पीएन जंक्शन को पढ़ें तब आप कोई ऐसा क्वेश्चन न करें जो कि प्रीवियसली बताया गया हो, दिक्कत वहां पे आती है। इसलिए टाइम लीजिए, समय दीजिए, क्योंकि आज मैंने कल आपको वो लेक्चर, आज मैं आपको दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है, और कल आज वाला मिल जाएगा आपको, आज जो रिकॉर्ड हुआ है ये। तो आपके पास पूरा मटेरियल है। संडे को 2 घंटे हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे और उसमें हम कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट मिनट को। तो आप उसके बाद तो फिर सर्किट्स हैं, सिंपली सर्किट बनाएंगे और समझेंगे, और हो गया खत्म। बहुत आसान है उसके बाद चीजें। लेकिन सर्किट के से पहले जब ये एलिमेंट हमें जो फॉर्म करना है कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या इसके पीछे फिजिक्स है, वो समझना होगा। बिकॉज इंजीनियरिंग में हम फिजिक्स को ही अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे, यानी कि फिजिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले। चलिए, तो चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन को समझते हैं। Ne, व्हाट इज Ne? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Na, number of acceptor ion, and NH, number of holes, and ND, number of donor ions. तो इस चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन को समझने के लिए बेसिकली आपको क्या समझना है कि ये एक जनरलाइज इक्वेशन है। ये हर तरीके के मटेरियल पे, ये आपके पीएन जंक्शन पे भी लागू होती है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं एन टाइप मटेरियल की, तो एन टाइप मटेरियल में डोनर एक्सेप्टर आयन नहीं होंगे। तो इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? इस तरीके से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स प्लस डोनर आयन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज आपके होल्स प्लस डोनर आयंस पे है। ठीक है, बहुत आसानी से समझ सकते हो कि ये मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिकॉज Na is 0 फॉर द एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल के लिए Na क्या है? 0 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स प्लस नंबर ऑफ डोनर आयंस। तो चार्ज न्यूट्रलिटी अपने आप मेंटेन हो गई, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट और ये नेगेटिव चार्ज कंप्लीट। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज कंप्लीट हो गया आपका Ne और NH। अब सिमिलरली फॉर द पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल के लिए डोनर आयन तो होगा ही नहीं। डोनर आयन यानी कि ये वाला पॉजिटिव आयन तो होगा ही नहीं, यानी कि Nd इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस, यानी कि ये वाले आयन
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. दिस इज व्हाट वी कॉल द जनरलाइज्ड चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन. इसको हम बोलते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन. देखो आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, आप जो चीजें पढ़ रहे हो क्वालिटेटिवली, हालांकि ये तो मैंने आपको क्वांटिटेटिवली बता दिया, हर एक चीज का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है. फर्मी एनर्जी लेवल, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, तो अभी हमने वो चीज इसलिए डिस्कस नहीं करी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो हर एक चीज को, बट बिकॉज ये रेस्ट्रिक्शन है हमारी कि आपके डिप्लोमा लेवल पे ये चीजें नहीं बताई जाती कि आपको हम ये भी बताएं सारी चीजें, बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं होता और ये ऑब्वियसली बात है, इसके लिए सफिशिएंट बैकग्राउंड भी नहीं है आपके पास अभी. तो बेसिकली ये चीज समझनी है आपको कि यहाँ पे ये दो ही इक्वेशन मैंने यूज करी है, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन और दूसरा आपका मास एक्शन. तो वो दोनों रिक्वायर्ड है. अब यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है एन और पी टाइप का सारा टर्मिनोलॉजी. ठीक है, अब एक या दो टर्मिनोलॉजी और है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से. एक है आपका ड्रिफ्ट करंट और एक है, दो तरीके की करंट होती है मटेरियल के अंदर. ठीक है, तो अभी तक तो आप कहोगे करंट तो सर एक ही तरीके की सुनी थी. अभी देखिए, अब देखिए, अब आपको कंसेप्ट को वाइड करना है अपने आप को. तो पहले हम डिस्कस करते थे, मैं आपको बोर्ड का यूज करके समझाता हूँ. देखिए, जब आप छठी क्लास में थे तब आप पढ़ते थे, छठी क्लास में नहीं पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा कि V इक्वल टू आई आर, यानी मेटल के अंदर करंट कंडक्टर्स होते हैं. और अब आपने फिर जिसने +2 किया होगा तो थोड़ा और डीपली जाना, वहां पे भी J इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज द ओम्स लॉ. इनसाइड द मटेरियल हमें पता है कि कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर हम करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, करंट फ्लो करते हैं. तो इसके बाद आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है अट्रैक्ट करते हैं फील्ड की तरफ और आपका करंट फ्लो होता है. ये हम पढ़ते आ रहे थे अब तक. ठीक है, हमने नया क्या सीख लिया इसमें? नया हमने ये सीख लिया कि हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल देखा, तो उसमें जो करंट था सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी था और होल्स की वजह से भी था. तो एक नए तरीके का चार्ज कैरियर देख लिया हमने. ठीक है, और दोनों में डिफरेंस भी समझा. तो हमने मटेरियल को प्रोसेस किया, इंजीनियर्ड किया, तब जाके हमें ये मिल गया. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब ये करंट अब आपका यहाँ पे कंप्लीट करंट इन दोनों की वजह से है. अब सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एक और तरीके का करंट डिफाइन होता है जो कि हम अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा. एक होता है आपका ड्रिफ्ट करंट, ये तो आप जानते हैं. तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? whenever, बस ये दो डेफिनेशन आपको समझनी है and then we will come to the PN junction in the next class. Drift and diffusion. So drift current क्या होता है? Basically whenever any charge carrier moves in the influence of electric field. Okay, मैं proper definition भेज दूंगा आपको इस पे ग्रुप पे. Right now all you need to understand कि whenever the charge carrier moves in the influence of electric field, then the type of current which is flowing inside any material, that could be a conductor or that could be a semiconductor, is called the drift current. यानी drift current क्या है? जिसमें कि drift velocity generate होती है. drift velocity generate होती है और वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. ये आपका ड्रिफ्ट करंट से रिलेटेड चीज है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. यानी जब मटेरियल में हम विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड, या वोल्टेज ने क्या किया? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, पता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया. अब इसके बाद जब जनरेट किया तो उसके बाद आपका करंट जनरेट हुआ. करंट कैसे जनरेट हुआ? कि आपका चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पास करने लगा. और करंट क्या होता है आपका? कि जो पर यूनिट चार्ज जितना भी आपका पर यूनिट टाइम में चेंज आपका करंट पास कर रहा है, यानी कितना चार्ज पास कर रहा है पर यूनिट टाइम में क्रॉस सेक्शन एरिया से. ठीक है, तो और यहाँ पे हमने ये भी जानते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है. अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका ड्रिफ्ट करंट. एक और तरीके का करंट होता है विच इज डिफाइंड फॉर द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, डिफ्यूजन करंट.
बस ये लास्ट कंसेप्ट है एंड दिस विल गिव यू द सफिशिएंट बैकग्राउंड to understand the process of PN junction. What is happening when the PN junction is formed? How the barrier of 0.7 volt will 0.7 volt 0.7 volt will form, and how the depletion layer will form. So this we will understand in the subsequent classes. So for this you need to understand a diffusion current. अच्छा diffusion क्या होता है? Anyone? Diffusion कोई जानते हैं क्या होता है? What is अभी diffusion current पे हम आएंगे. Diffusion क्या होता है? Anyone? Sir, spreading of two gases. हाँ जी. सर किन्हीं दो चीजों का मिलना, रिकॉम्बिनेशन. Flowing of higher potential to lower potential. अभी किसी ने प्रेशर करके कुछ वर्ड बोला था, वो क्या बोला था? एनीवन? अभी किसी ने बोला था, अभी किसी ने जवाब दिया था कि ड्यू टू प्रेशर करके कुछ बोला था. Sir, high potential to lower potential. हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अब पोटेंशियल देखिए, सबसे पहले तो देखिए ऐसा है कि आप इतने भारी भारी शब्दों का प्रयोग मत किया करिए, मैं डर जाता हूँ. आप बहुत साधारण शब्दों का बात किया करिए. डिफ्यूजन करंट क्या है? ठीक है, हम यहाँ ड्रिफ्ट करंट तो आपको क्लियर है. ठीक है, ड्रिफ्ट करंट तो आप पढ़ते आ रहे हैं अब तक, जितना भी आपने पढ़ा था 9, 10, 11, 12 में, और इवन स्टार्टिंग ऑफ दिस कोर्स हमने यही समझा था. अब डिफ्यूजन क्या होता है? पहले तो डिफ्यूजन करंट तो हम बाद में बात करेंगे. कमरे के किसी कोने में, आप अपने कमरे के किसी कोने में एक तरफ आप डीओ स्प्रे करते हैं, या कोई भी, अगर हम बात करें आजकल सैनिटाइजर्स बहुत यूज हो रहे हैं, तो कहीं भी स्प्रे होता है तो आपको खुशबू आती है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं. अगर कोई स्प्रे करें, या फिर कोई फ्रेग्रेंस वाली चीज को अगर स्प्रे करते हैं, डीओ स्प्रे, तो वो पूरे रूम में फैल जाती है. ठीक है, क्यों? वो एक 10 मीटर दूर खड़े आदमी को भी स्मेल आ जाती है कि भाई ये ठीक है, ये जो है. और आजकल तो स्मेल तो बहुत जरूरी है, स्मेल आनी भी चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है. तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की, ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का. डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है कि अगर मैं कमरे के किसी कोने में कुछ ऐसा डीओ स्प्रे या ऐसी कोई चीज स्प्रे करता हूँ, और जिसमें स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स हैं और बहुत ज्यादा, और वो मूव कर सकते हैं एयर में, तो वो जब अपने आप को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं. मैंने क्या किया, जब कमरे के कोने में मैंने जब डीओ स्प्रे किया, तो ये बहुत सारे पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो गए. कमरे में बहुत सारे पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो गए. एक कमरे के कोने में मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है. अब ये अपने आप को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं. जैसा कि आपने कहा हाई पोटेंशियल से, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन की. हाई कंसंट्रेशन से ऑलमोस्ट, यहाँ तो कोई पार्टिकल नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ तो कुछ स्प्रे हुआ ही नहीं है, तो ये मटेरियल अपने आप को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने की कोशिश करता है. कोई भी मटेरियल, ये नेचर में कहीं पे भी हम इकट्ठा बहुत सारी चीजों कर देंगे, तो वो अपने, अगर उसको स्पेस मिलेगा तो, बशर्ते इसको स्पेस मिले अपने आप को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने के लिए, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रोसेस. सिमिलरली तो ये आपका क्या होता है? डिफ्यूजन. सिमिलरली देयर इज अ डिफ्यूजन करंट व्हेनेवर, अगर किसी मटेरियल, व्हेनेवर इनसाइड ए मटेरियल there is a very high concentration of some particular kind of charge carriers. एक मटेरियल है और somehow हमने डोपिंग कर दी, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि डोपिंग जब हम कर रहे हैं मटेरियल के अंदर, तो ऐसा भी कर सकते हैं यूनिफॉर्मली डोप कर दे, और ऐसा भी कर सकते हैं कि इतने हिस्से में तो डोपिंग कर दी बहुत अच्छी, बाकी का हिस्सा छोड़ दिया. इस तरीके की अगर कोई फिनोमेना होती है, तो मान लीजिए एक तरफ कहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं और ये मटेरियल पूरा यहां से लेके यहां तक है, तब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने आप को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो करंट होता है, द करंट ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज, एनी काइंड ऑफ चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट. यानी कि, और यू कैन से द ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. क्योंकि ग्रेडियंट बन गई. ग्रेडियंट क्या होती है कि अगर हम देखें इतने हिस्से में ज्यादा है, इतने हिस्से में कम है, तो यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ एक आ रही है मुश्किल से, तो यहाँ पे तो ये क्या होगी, एक तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गई. तो ये ग्रेडियंट जब बन जाती है, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है, यानी जब मटेरियल अपने आप को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने की कोशिश करता है अपने उसके अंदर, अपने ओरिजिनल मटेरियल के अंदर, सॉरी, जब चार्ज कैरियर अपने आप को यूनिफॉर्मली अपने ओरिजिनल मटेरियल के अंदर स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज मूव करेगा.
और जब चार्ज मूव करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से होके तो डेफिनेटली वहां पे करंट, एज वी नो व्हेनेवर द चार्ज मूव। अब एक तो कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तब मूव कर रहा है, वो तो समझ में आ गया, ड्रिफ्ट करंट। अब डिफ्यूजन करंट कहां से आया? डिफ्यूजन करंट आया कि जब आपने मटेरियल के अंदर कंसंट्रेशन चेंज कर दी, मटेरियल के अंदर कंसंट्रेशन चेंज कर दी, देन द डिफ्यूजन करंट इज जनरेटेड। ठीक है, ये क्लियर है? तो चलिए हम क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो वी आर कंक्लूडिंग क्लास at this point and from the next class we will start the next topic. Okay, तो वो जो भी होगा डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए और अनाउंसमेंट मैंने बताई दिया आपको, नेक्स्ट वीक में आपका सी है, तैयारी रखिए, पूरी पहली यूनिट आएगी। ठीक है, तो अभी से आप तैयार हो जाइए और कोई डाउट है मोस्ट वेलकम, आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। और इन केस एनी डाउट सेशन इज रिक्वायर्ड तो कल या परसों में आप बता दीजिए, आपके कॉलेज की क्लास खत्म हो जाए, आप अपने अलग अलग क्लासेस का भी मैं कर सकता हूँ। अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वैसे खुद ही कितने बच्चे हैं एक साथ ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाए 2 बजे 3 बजे लेट मी नो कि सर इसमें डाउट है, ये कंसेप्ट दोबारा समझा दो। शुक्रवार शनिवार, ये आज क्या गुरुवार है, शुक्रवार शनिवार 2 दिन है आपके पास, दोनों दिन में से किसी भी दिन लेट मी नो विद वाया मेल। ओके, प्रॉपर चैनल मेल के थ्रू बताइए कि सर हमें क्लास करनी है और उसके बाद में क्लास लेना। ठीक है, चलिए अब आप अपनी अगली क्लास में जाइए एंड यू मे लीव द क्लासरूम। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ये डीएचए लिख के भेजा है रवनीश मिश्रा जी ने। मिश्रा जी, डीएचए जो है आपके मैं चेक कर रहा हूँ, धीरे धीरे चेक करूंगा, लेकिन सभी के डीएचए प्रॉपरली चेक करने के बाद ही आपको उनका जवाब मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपने जमा किया है, लेट सबमिटेड है, उसके साथ थोड़ा सा इश्यू है तो उसको थोड़ा कम में एवेल्युएट करेंगे, बाकी सब सही है। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको हर एक डीएचए का मार्क्स मिलेगा। चलिए और बताइए, अब आप जा सकते हैं, अगली क्लास ज्वाइन करिए, टेक्निकल कॉलेज से जो भी होगी आपकी। ओके सर।